السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ناظرین، آج کے درس میں ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی اللہ رب العالمین کے نزدیک کتنی عظمت اور اس کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، اور یہ صرف آج کی بات نہیں یا کل کی بات نہیں، بلکہ روز اول ہی سے جب سے اللہ رب العالمین نے اس کو بنایا تبھی سے اس کی عظمت، اس کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ جو اسلام دشمن ہیں، جو مسلمانوں کے خلاف اپنے دل میں عداوت اور بغض رکھتے ہیں، حسد اور کینہ کپٹ رکھتے ہیں، وہ اس گھر کو نہ صرف ناپسند کرتے ہیں بلکہ ایسا بھی ہوا کہ اس پر حملہ آور بھی، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے گھر کی حفاظت کی۔ اسی طرح کا ایک واقعہ اس وقت پیش آیا جب یمن میں ابرہہ نامی شخص گورنر تھا، اور اس وقت لوگ اطراف و اکناف سے بیت اللہ شریف کی طرف آتے تھے، اور وہاں جو حرمت والے مہینے ہیں ان کی قدر کرتے تھے، اور اس میں ان لوگوں کو تجارت کرنے میں، خرید و فروخت کرنے میں آسانی ہوتی تھی، لہذا دن بدن خانہ کعبہ کی عظمت ان لوگوں کی نظر میں اور بھی بڑھ گئی تھی۔ ادھر ابرہہ اس کو بڑا غصہ آتا تھا کہ کیوں نہ ہم اسی جیسا ایک گھر یہاں بنا لیں تاکہ لوگ خانہ کعبہ کے بجائے، مکہ کے بجائے یہاں یمن آئیں، صنعاء آئیں، اور یہاں آئیں گے تو ہماری تجارت بڑھے گی، ہمارے شہر کا نام روشن ہوگا، اور ہر لوگ، ہر طرح کے لوگ اس کو جانیں گے۔ لہذا انہوں نے خانہ کعبہ کی عداوت میں، اس کی دشمنی میں اپنے یہاں ایک گھر اسی طرح کی بنانے کی کوشش کی، اور لوگوں میں عام کرنے لگے کہ یہ بڑی عظمت والا گھر ہے اور اس کی طرف تم لوگ آؤ۔ ایک شخص کو بڑا غصہ آیا، اس نے اس میں گندگی پھیلا دی، پاخانہ کر دیا، تو ابرہہ کو اس بات پر اتنا غصہ آیا کہ وہ کعبہ کو ڈھانے کے ارادے سے، کعبہ کو گرانے کے ارادے سے اپنی فوج لے کر ایک کثیر تعداد میں لوگوں کی ایک فوج اس نے تیار کی، اور اپنے ساتھ 13 ہاتھیوں کا ذکر آتا ہے کہ 13 ہاتھیوں کو بھی لیا، اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے ارادے سے وہ نکل پڑے۔ لشکر جرار ان کے ساتھ موجود، اور ہاتھیوں کی ایک جماعت اس کے ساتھ موجود، اور وہ قافلہ بڑھتا رہا، یہاں تک کہ جب وہ قریب پہنچ گیا، بتایا جاتا ہے کہ وہ مزدلفہ کے قریب ایک محصر جگہ ہے، وہاں پہ وہ لشکر جب پہنچا تو وہاں پڑاؤ ڈال دیا، اور پڑاؤ ڈال کر ابرہہ نے خبر بھجوائی مکہ میں کہ جا کے کہہ دو کہ ہم ایک لشکر لے کے آئے ہیں اور تم لوگوں سے لڑنے کے ارادے سے نہیں،
बल्कि खाना काबा को गिराने के इरादे से आए हैं। चुनांचे उस वक्त जो खाना काबा के मुतवल्ली थे वो अब्दुल मुत्तलिब थे। अब्दुल मुत्तलिब के उधर 200 ऊँट को उस अब्रहा के लश्कर ने पकड़ लिया और पकड़ करके रखा। अब्दुल मुत्तलिब को जब पता चला, उस वक्त वो मुतवल्ली थे, जब मक्का में खबर फैली कि एक लश्कर आया हुआ है जो खाना काबा पर हमला आवर होने वाला है, तो वो अब्दुल मुत्तलिब आए। और जब वो आए तो अब्रहा और अब्दुल मुत्तलिब के दरमियान एक मुकालमा हुआ। अब्रहा ने पूछा कि अब्दुल मुत्तलिब बताओ किस गर्ज से आए हैं। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि सुना है और पता चला कि आप लोग यहाँ आए हैं और मेरे 200 ऊँटों पर आप लोगों ने कब्ज़ा कर लिया है, लिहाजा मैं अपना ऊँट वापस चाहता हूँ। अब्रहा को इस बात पर, इस जवाब पर बहुत हैरानगी हुई, बहुत ताज्जुब हुआ और वो परेशान भी थोड़ा सा हुआ कि एक ऐसा शख्स है, उसका ऊँट यहाँ कब्ज़े में है और वो खाना काबा के मुतवल्ली हैं। खाना काबा जिसको हम ढाने के इरादे से आए हैं, उसके बचाव में उसको कुछ कहना था, लेकिन वो अपना ऊँट मांग रहा है। उससे कहा कि अब्दुल मुत्तलिब, ये कैसा जवाब है? मैं तो ये चाहता था कि आप कुछ दूसरा जवाब देंगे, लेकिन खाना काबा की बचाव के बरखिलाफ आपने अपना ऊँट मांगा। अब्दुल मुत्तलिब ने क्या ही प्यारा सा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देखो, एक तरफ ऊँट का सवाल है, एक तरफ खाना काबा का सवाल है, बैतुल्लाह का सवाल है। ऊँट का मालिक मैं हूँ और बैतुल्लाह का मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है। वो अपने खाना काबा को, मुझे उम्मीद है, यकीन है कि वो ज़रूर बचा लेगा। चुनांचे वो अपना ऊँट लेकर के वापस हो गए। इधर अब्रहा का जो हाथी था, जब वो इरादे से आगे बढ़ना चाहा तो उसका हाथी बैठ गया। और इस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन भी उधर मंसूबा बना रहा था और उस लश्कर पर और उसकी मज़मूम कोशिश पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रहती दुनिया तक एक नसीहत आमेज़ उनको सज़ा दी। क्या सज़ा दी? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर बहुत ही प्यारा नक्शा खींचा है और पूरी एक सूरतुल फील के नाम से नाजिल फरमा दी। फरमाया, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन माकूल। क्या ही प्यारी बात अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया? अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील। क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके मक्र को बेकार न कर दिया, नामुराद न कर दिया? अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबिल, और उन पर परिंदों के गोल भेज दिए। व अरसल अलैहिम तयरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील, जो उन पर मिट्टी के कंकरियाँ और पत्थर की कंकड़ियाँ बरसा रही थी। वो चिड़िया उन पर मिट्टी की छोटी छोटी कंकड़ियाँ, पत्थर की छोटी छोटी कंकड़ियाँ बरसा रही थी और उनको फिर ऐसा कर दिया कि गोया कि वो खाया हुआ भूसा हो। अल्लाह ताला ने उसको इस तरह से इबरतनाक सज़ा दी कि इस सूरे में उसका पूरा नक्शा खींच दिया कि किस तरीके से उन्होंने मंसूबा बनाया। उस मंसूबे पर अल्लाह ने न सिर्फ पानी फेरा बल्कि उस लश्कर ही को भस्म कर दिया, उसको भूसा भूसा कर दिया। ये इबरत है उन लोगों के लिए जो खाना काबा की तरफ उंगलियां उठाते हैं। इस सूरा में इबरत है उन लोगों के लिए
जो खाना काबा की दुश्मनी अपने दिल में पालते हैं। ये इबरत है उन लोगों के लिए जो मुसलमानों के खिलाफ और काबा शरीफ के खिलाफ जहर उगलते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे तो क्या नहीं कर सकता है, इबरतनाक सज़ा दे सकता है, उसको दुनिया से मलियामेट कर सकता है, उसको दुनिया से निस्तो नाबूद कर सकता है। हर चीज़ मुमकिन है, बस अपने दिल में हम ये ख्याल करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मौजूद है। अगर हम अच्छी चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, अपनी उंगलियां उठाएंगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उन आवाज़ों को दबाने पर कादिर है, उन उंगलियों को मोड़ने पर कादिर है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत से हम और आप वाकिफ़ हैं, हमें वाकिफ़ होना चाहिए। जो लोग खाना काबा से मुसलमानों को रोकने की कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला उनकी सोच को और उनकी सोच को कभी भी तकमील तक नहीं पहुंचाएगा। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना कफ़रू वयसुद्दूना अन सबीलिल्लाहि वल मस्जिदिल हराम, कि बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया और वो रोकते हैं अल्लाह के रास्ते से और रोकते हैं मस्जिद हराम से। और आगे फरमाया अल्लज़ी जअलनाहु लिन्नासी सवा, कि जिस खाना काबा को हमने तमाम लोगों के लिए बराबर रखा, यानी तमाम लोगों के लिए हमने उसमें हक बराबर रखा है। सवाअन अल-आकिफु फीही वल बाद, चाहे वहाँ के रहने वाले हों, वहाँ के बाशिंदे हों या वहाँ के बाशिंदे ना हो, बाहर से आने वाले हों, तमाम लोगों के लिए इबादत करने के लिए यकसा तौर पर हमने उसमें हुकूक रखे हैं। वमन युरिद फीही बिलहादिन बिजुल्मिन, और जो शख्स इल्हाद के ज़रिए से, कजरवी के ज़रिए से उसमें जुल्म के ज़रिए से वो कजरवी फैलाना चाहते हैं। वमन युरिद फीही बिलहादिन बिजुल्मिन नुज़िक़हु मिन अज़ाबिन अलीम, तो ऐसे लोगों को हम दर्दनाक अज़ाब चखाएंगे, ऐसे लोगों को हम सख्त अज़ाब चखाएंगे, सख्त अज़ाब से दो चार करेंगे। यह अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है। इसलिए हमें खाना काबा के लिए दुआ करनी चाहिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन तो है ही मुहाफ़िज़, इंशाअल्लाह रहती दुनिया तक वो अपने इस घर की हिफाजत करे।